Another beautiful morning in Dehradun, and I think every time I start doing these conversations, I can just go on and on and on. I just finished a podcast with Ma'am Greenwold. I'm sure all of you remember her from our junior school. She taught us Hindi. Very kind, very nice teacher. Yes, definitely she was very strict. Uh, but what I just enjoyed talking to her was that I think she remembers so much, and with details, with years, names, everything very specific. So that's just beautiful. She's 89 at the moment. She gave more than 40 years of her life, approximately more than 40 years, to Cayman Hall. And Yeah, it was just wonderful. I could have gone on for hours and hours. Even before you see this podcast, I have to give big shout out to Shivangi Rana, class of 2000. She visited during the alumni meet, and in fact, she came to see ma'am, and she sent me that picture, which prompted me that I should definitely try and get ma'am on the podcast, and of course, very kind of Chitra Gupta ma'am as well to convince ma'am to come on the podcast. As you would see, that ma'am uh, is still very young but old, of course. She's 89, but I just enjoyed the conversation. बहुत सारा this entire conversation is lots of in Hindi because she was a Hindi teacher and she insisted that we should speak in Hindi. Uh, so it was wonderful. You should hear this. Lots of stories about borders, about a story about naughty boys. My brother Shailesh Bajpayee, what she did to bit of punishment that she had given to him. So about that, she talks a lot about the four principles that she worked under: Sir Dutre, Sir Mayor, Sir Tuck, and Mr. R.C. Singhal. So she talks about that tenure. Lots about her colleagues as well, and of course the entire era that she was there in Cayman Hall. Bit about where she started, how did she take up Hindi as a subject, etc. So I'm sure you will love it. It'll bring a smile on your face. And before I conclude, I have one sincere, humble request to all the Cameronites. If you're in Dehradun, if you're visiting Dehradun, if you're visiting India, please visit our teachers who have given so much to us, not just our teachings, but also lots of blessings. So please do visit them. I think from my personal experience, I can say that you will really enjoy meeting them, and it'll fill your heart with a lot of love, and they will give you a lot of blessings. So thank you very much. Go enjoy this podcast with Ma'am Greenwald, and of course, nicely accompanied by Ma'am Chitra Gupta. So आज वाली बातचीत हमारी थोड़ी सी मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज मेरे सामने मेरी हिंदी की शिक्षक हैं और शिक्षिका। पहला मैं करेक्शन हो तेरा गया, तेरा शिक्षक नहीं हूँ। शिक्षिका रही हैं। हाँ। तो मुझे बहुत सारा हिंदी में बोलना पड़ेगा। ओहो। और यहाँ पर चित्रा मैम भी है तो वो तो पिटाई भी कर सकती है बगल में बैठकर, इसलिए मैम इज राइट इन द सेंटर। बट बिफोर हम बातचीत शुरू करते हैं, मैम आपको मैं सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से। मैं भले ही मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे केमरनाइट्स हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं और शुक्रिया करते हैं आपका कि यू वर सच अ ब्यूटिफुल लवली टीचर टू ऑल ऑफ अस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द टीचिंग्स वी कुड डू समथिंग इन लाइफ। सो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अगर हम बातचीत कर रहे हैं, आई हैव टू थैंक टू पीपल। वन इज Shivangi Rana, class of 2000. So she sent me a picture and she came to see you. यहीं पर she clicked a picture. And that brought such a massive smile on my face. I felt wow. She said I went and met ma'am. So वो घर में क्योंकि आप तो alumni meet में नहीं आए और नहीं आ पाते अभी, तो मैं वो फोटो देखकर इतना खुश हुआ। उसके बाद अब वो बोलते हैं हिंदी में, जैसे सरस्वती कई बार मुंह पे लग जाती है, तो मैम एंड मी वर जनरली टॉकिंग एंड बोथ ऑफ अस
एकदम से हमारे मुंह से निकला कि मैम should be the next person on our podcast. So that's why I said I want to thank two people. Shivangi Rana, thank you very much. A big shout out to you. And I would say for all the Cameronites, whenever you're visiting Dehradun or if you're in Dehradun, please visit our teachers if you can, whatever time little that you can hand. Because I think दो teachers के आगे मैं बोल रहा, they only need two things. एक समय और एक इज्जत. I think that these are the only two things that the teachers require right now, like our parents. Absolutely. You know, very. And second person is पहले तो हमारी टीचर थी, अब तो दोस्त की तरह हैं. तो she also helped me in deciding कि हम आपसे मिलेंगे. तो मैम सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? How are you feeling? मुझे today? बहुत अच्छा लग रहा है और इस समय मुझे प्रेमचंद की एक कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक कहानी याद आ रही है, मास्टर जी. तो टीचिंग जॉब जो है इट्स अ वेरी नोबल जॉब. और मेरे समाज में किसी ने कहा गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए. क्या मैं जानना चाहती हूँ आजकल के शिक्षक क्या अपने बच्चों को ऐसे ही देते हैं परमेश्वर का ज्ञान, या सिर्फ हमारे ज़माने में व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टीचिंग आई गॉट 125 रुपीज़ सैलरी. दैट 125 रुपये हमारी सैलरी थी एंड आई वॉज सो हैप्पी विद दैट. मैम जब आप ये बोल रहे हैं मुझे थोड़ा साल बताइए, किस साल की बात कर रहे हैं हम? 1951 में. ओह वाओ, मतलब केमरन हॉल के बनने से पहले. I passed out my 10th class in 1951. Okay. And I passed out from Lucknow University at 1957. Okay. 57 में I did my B.Ed from Isabella Thoburn College, and that was the first batch of B.Ed. And everything was in English those days. And the fact is this, I was in Almora when everything was in Hindi. When I was admitted in the college, I was so upset कि how will I do everything in English, because everybody used to speak in English. Isabella Thoburn College was the next. Yes. वहाँ से if you just get inside ऐसा लगता था कि तुम दूसरी दुनिया में you have come to another world. Okay. So मैं तो भभरी गई. I wrote my father. sorry फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? मैं क्या हो गई? भभरी गई means घबरा गई. हाँ, मैं बिल्कुल I was so, मैंने कहा no पापा I can't stay here and please take me from here. Though I was a very अच्छी student थी, I was पढ़ने में, and my father said no beta you have to be there. And you know that time my father was also a teacher in Ramsey Inter College. He was a science and maths teacher, a very intelligent man. If you go to Almora and ask about Mr. E.H.N, वो सब बताएंगे तुमको उनके बारे में. तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि no, you write me letters in English, and I used to write him the letters in English, and Papa used to correct everything. And इस तरह से then जब हम लोग वहाँ पर एक जनरल इंग्लिश का भी, जब मैं BA पार्ट 1 में थी, और जनरल इंग्लिश का एक अलग से टेस्ट होता था. अच्छी अंग्रेजी स्कूल की लड़कियाँ फेल हो गई, आई पास. वाओ. उनको रिपीट करना पड़ा. दिस वाज आवर यू नो, ये जो थी हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश वाज वेरी वेरी करेक्ट. मैम सो when you're talking about this, your English was very good. So मेरा obvious एक curiosity है, why did you choose Hindi then? My father said that we are Indians, I would like you to choose Hindi. Oh wow, okay. हम लोग बड़े देशभक्त थे. My papa was first class, मतलब कांग्रेसी थे हम लोग. हमारे घर में गांधी जी की तस्वीर थी, नेहरू जी की तस्वीर थी, और गांधी जी की तस्वीर पर रोज माला डलती थी. Okay. So that is how you chose Hindi as your as your subject. पापा ने कहा ना, you have to choose Hindi only, Hindi. ठीक है. And Mr. बहुगुणा थे हमारे, क्या था उनका नाम है, तो कॉलेज नहीं थे, he was our teacher. हमारे वाले मिस्टर बहुगुणा बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा दूसरे बहुगुणा के रिश्तेदार थे हमारे कॉलेज में. मिस्टर बहुगुणा थे वो. अच्छा. और एक मिस्टर चंदोला थे. अच्छा. वो भी हमको हिंदी पढ़ाते थे. मिस्टर बहुगुणा. So this you are saying of your college days? हाँ, of your college days. अच्छा. Okay. तो बेटा I had very beautiful experiences. Okay. In my life. Okay. And हमारे कॉलेज में बड़ी हाई क्लास लड़कियां भी आती थी, बड़ी फैमिली. जब हाई क्लास बोले तो मैम? हाई क्लास मीन्स जमींदार की फैमिली से. अच्छा. तो हम डॉर्मेटरीज में रहती थी. ओके. बड़ी मतलब
मेरेंडा हाउस से लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए okay. दिल्ली Delhi में। University. इंटरप्ट हाँ आईटी कॉलेज में एडमिशन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती उपलब्धि थी, बस आई डिड सो है। बस हो जाए। मेरा भी एडमिशन हुआ था, आई हाँ। कुडंट गो बिकॉज माय फादर हैड अ हार्ट अटैक एंड आई हैड टू स्टे बैक। Okay. उस समय में तो बड़ी उपलब्धि थी। Hmm. मैं तो 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी बेटा। Wow. उस समय 10th में मैंने तो क्या कहते हैं 60% मार्क्स आए थे मेरे उस Very समय 60% बहुत Was big. मुश्किल। बहुत मुश्किल से आते थे। Hmm. मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा खूबसूरत थी। Okay. हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। आई वाज वेरी गुड इन ड्राइंग, आर्ट्स वगैरह में भी मेरे बहुत Okay. अच्छा था। Okay. और क्योंकि पूरा ध्यान उसी में था पढ़ने में। हाँ. तो the college you did in Lucknow, लखनऊ, right? And so parents were here in Dehradun, माय पेरेंट्स वर इन अल्मोड़ा। in Almora. ये तो मेरा So you lived all alone in Lucknow. हाँ, आईटी कॉलेज वाज हॉस्टल में हॉस्टल okay, में okay, थी बेटा। okay, मैं okay. डॉर्मेटरीज में थी। Okay. हम 6 लड़कियां रहती थी I'll डॉर्मेटरीज come में। to IT college connection with Cayman Hall and Cayman Heights once again. आगे जाकर मैं आऊँगा आपके पास. मैम जगबाला वाज आल्सो फ्रॉम, मैम ने पकड़ लिया मेरे को. मिस जगबाला वाज जूनियर टू मी। वी वर इन द सेम डॉर्मेटरीज एंड वी आवर बेड वाज जस्ट साइड बाय साइड हाँ. एंड शी वाज वेरी नॉटी। Is it? she was a She freshie. didn't let anybody become naughty then? हाँ. वो She- खुद तो naughty थी. she finished हाँ, she was a freshie and I was a sophomore. हाँ. तो वो तो फ्रेश मैन ईयर में आई थी, मैं तो सोफोमोर थी। हाँ. और क्या कहते हैं बहुत अच्छी थी। हाँ, एंड हाँ. हम लोग साथ अल्मोड़ा जाते थे हाँ. जब, तो उसके फादर वाज पोस्टेड इन काठगोदाम, हाँ. रेलवे में समथिंग ही वाज। तो मैम लखनऊ में आपने पढ़ाई करी. हाँ, देन उसके बाद फिर देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं मैंने कुछ साल पिथौरागढ़ में सर्विस करी, मिशन अच्छा. इंटर कॉलेज में। ओके. वहाँ पढ़ाया मैंने। हिंदी. नहीं, हाँ. तब तो मैंने सब कुछ पढ़ा। हिंदी तो मैंने सिर्फ कैमरा हॉल में Okay. So that was all. आई वाज अ सब्जेक्ट टीचर, सब Okay. कुछ पढ़ाती थी। Okay. Okay. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, So एक्सेप्ट हिंदी को छोड़कर। okay. मैंने हिंदी नहीं पढ़ाई, बाकी सब कुछ पढ़ा। Oh wow. तो ये लगभग now which year are we talking मैम? कुछ अगर ध्यान हो तो, जब हम अल्मोड़ा में आप पढ़ा रहे हैं तो मैं अल्मोड़ा में मैं पढ़ा रही थी 50s में होगा कुछ. 1957 में आई पास आउट। यस, ठीक है. मैंने तब अल्मोड़े में पढ़ा। हाँ. 50s और early 60s शायद. 58 हाँ, 58. 58 Right? में, हाँ 58. पढ़ा है मैंने। and then you joined Cayman Hall when 1970 1970 1970. ओके. सो 1970. तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर ड्यूट्रे थे। आप हो गए 8th में. 73 हाँ दैट टाइम मिस्टर ड्यूट्रे वाज द आपने नहीं प्रिंसिपल। पढ़ा है, लेकिन थे वो नहीं, टीचर उन्होंने तब, नहीं पढ़ा, बट वो पर जूनियर ये- स्कूल में हाँ, थे. and I मैं- remember her very well. सो सर ड्यूट्रे वाज द प्रिंसिपल. हाँ, ओके. एंड यू नो माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी एंड सारे मेरे इन लॉज जो थे दे ऑल वर्कड इन मिशन इंस्टीट्यूशन में। Hmm. सो दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी वी हैड दिस बिग प्रॉपर्टी आल्सो, ओके. बट दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे सबको। तो मैंने कहा एक मेरा हस्बैंड इतने परिवार को सपोर्ट करेंगे, सो आई वांटेड टू जॉइन कैमरन हॉल। ओके. एनी कोई मैंने कहा मैं नौकरी करूंगी। माय मदर इन लॉ वाज अ बिट बेटर स्ट्रिक्ट। शी सेड नो, इफ यू वांट आई विल नॉट लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, because Anu was born that time, premature baby, and he was very weak, and my elder son Jyoti was a very happy-go-lucky child, beautiful child and very happy-go-lucky baby. So my mother-in-law said, no, I will not let you work any job. But Mrs. Khanduri's aunt, Jyoti, Sheila Pupi, they had a relation with Greenwalds, so she came here. सो मैम लगी? खंडूरी जब आप बोला तो आप हमारी मैम खंडूरी की बात कर रहे हैं? हाँ, ओके ओके ओके. वो तो मेरी ये हटा दो, वो तो क्योंकि मे- शक्ल वो नहीं तो दिख वो रही तो उधर। मेरी रिश्ते में चाची भी लगी। पीछे हाँ. तरफ। अच्छा, हमें ये अच्छा. रिश्ता था हमारा उनका। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि तेरी इतनी पढ़ी लिखी बहू हाँ. घर में चूल्हा झोंकेगी। हाँ. एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने अपने मायके में कभी खाना नहीं बनाया, कभी मैंने बर्तन नहीं मारे, कभी मैंने कपड़े नहीं धोए। ओके. एंड बीइंग द फर्स्ट डॉटर इन द फैमिली एंड द हाँ. फर्स्ट ग्रेजुएट daughter of the family, Pampered. and I was pampered, मतलब looked after very delicately. ओके. So this thing happened when I came here. I had to do everything, पर मैं बड़ी खुशमिजाज मैं लड़की- वापस जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बैक टू द टाइम जब यू joined Cayman Hall. Yes. So do you remember who took your I don't know whether interview होता था कि Interview. conversation Interview. किससे हुआ था?
Mr. Dutri, principal से. Okay. Mrs. Khanduri took So me to ma'am Khanduri introduced you, हाँ, to principal. principal sir. हाँ, principal sir. हाँ. तो that time my all certificates was with my father. मेरे पापा के पास रखे थे घर में मायके में. I haven't brought anything here. So this information, ma'am, जो आप बोल रहे हो ना, I got from KK Agarwal sir, because he said he was in the school at that point of time. Of course, आपसे 2 साल छोटे हो गए, so he would be inside 6th, 7th. लेकिन पढ़ाया नहीं, लेकिन आप सर स्कूल में थे जब आपने ज्वाइन करा. हाँ, मैंने कृष्णा को तो पढ़ाया नहीं. हाँ. कृष्णा को मैंने पढ़ाया नहीं, पर बाद में वो आया टीचर बन के हमारे साथ. हाँ. पढ़ाता था. खैर, उसके बच्चों को पढ़ा रखा मैंने. So Dutri sir recruited you. So any conversation you remember? वो याद है जब आप मिले? उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, that time I was appointed as a substitute teacher. अच्छा. Okay. Unluckily, Mrs. जो substitute teacher थी, she died. Okay. She died, तो उसकी जगह पर मुझको रख दिया उन्होंने. Okay. Then she said, I want you to be permanent. Okay. Because क्या कहते हैं, I used to teach everything except Hindi. हाँ. Except हिंदी भी पढ़ाती थी मैं. Mrs. Butler White, myself, history, geography. Ellen घोष को you know. Okay. He is no more now बेचारा. तो उसको पढ़ाती थी. So sorry. सर घोष बोल रहे हैं, तो मैम घोष के हाँ, हस्बैंड? मैम घोष का लड़का. ओह अच्छा. मैम घोष तो हमारी टीचर थी क्लास 3 में. बिल्कुल, सभी तो पढ़ता था ना. पढ़ता था. कितना अच्छा बॉक्सर था वो. उसको भी पढ़ाती थी मैं. ओके. जरा पढ़ने में कमजोर था वो. ओके. बट ही वाज अ वेरी गुड एथलीट. बहुत अच्छा था. ओके. तो मिस्टर ड्यूटी ने कहा तुम्हारे सर्टिफिकेट्स. मैंने कहा मेरे सर्टिफिकेट्स तो यहाँ है ही नहीं, कोई ना, कोई भी नहीं है. तो अब क्या होगा. उन्होंने कहा, पर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट. आई बिलीव यू. तब मैंने आई रोट टू माय फादर. ही सेंट मी ऑल माय सर्टिफिकेट. देन आई सबमिटेड इन द ऑफिस. मैम मेरे को अब सॉरी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मैम. वी आर टॉकिंग अबाउट 55 years बैक, राइट? सब कुछ. मैम क्या खाते हो सुबह ये मेमोरी को तेज करने के लिए? मेरे और मैं आई हैव टू टेल ऑल माय फ्रेंड्स जो बोलते अरे याद ही नहीं यार मुझे. अरे वो 55 years एंड यू नो एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन 55 years बैक की. सो मैम ये मेमोरी तेज के लिए बेटा ईश्वर भगवान का देन है. ओके. एंड अपनी जिंदगी में मैं कभी ज्यादा खाने वाली लड़की नहीं रही. Okay. मैं बड़ी खुश मिजाज. मैम ने बोला खाना, तो मैम ने कम ही खाना. नहीं खाना मैं खाना हमारे घर में टाइम से मिलता था. हमने कभी टाइम से बेटाइम नहीं खाना खाया. और मैंने खूब कच्चे फल खा रखे हैं. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. जितने कच्चे आड़ू थे मैं खाती थी, जितने कच्चे फल थे. इवन मैंने मैं एक्सपेक्ट भी करती थी, तभी भी मैं सब कुछ खाती थी. So, सब कुछ नेचुरल अच्छा खाया आपने. Because of that you give credit to. हमारे घर में मेरे मायके में गाय पली हुई थी. Okay. और मेरी बूढ़ी नानी जो थी वहीं गाय का दूध दुआती थी और गिलास पकड़ो अपना वहीं पर हमको बगैर गर्म करे हमने दूध पी. मैम मैं वापस केमन हॉल में आ रहा हूँ. शुरुआत के जब आपके दिन थे तो आप बोल रहे हो कि you were teaching all the subjects, right? Do you remember what class? Class 2, 3, 4 क्या? मैंने 5 में भी पढ़ाया. क्लास 5 को पढ़ाया मैंने. 6 को नहीं पढ़ाया. Okay. 5 में पढ़ाया, 4 में पढ़ाया. मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई. Wow. और क्या कहते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी थी तो मैं ब्लैक बोर्ड में ऐसे मैं खींच देती थी. डॉक्टर मिस्टर ड्यूटी आई कहने ओह वंडरफुल, ये बहुत अच्छा है. तो मैं सारी ड्राइंग करती थी. मिस्टर ड्यूटी वाज अ वंडरफुल पर्सन. वो पर्सनली ध्यान पर्सनली वो हर किसी को जानते देखते थे. फिर बाद में मिस्टर टक आए तो फिर कुछ ऐसा हो गया तो फिर मैंने हिंदी पढ़ाई. आई वॉज अपॉइंटेड. मैंने उन्होंने कहा क्या पढ़ा. मैंने कहा जो दो. उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाने को दी और मेरी तो हिंदी बहुत अच्छी थी. मैम बाय एनी चांस मैं ना कल आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू, मतलब आई हैड सेंट अ मैसेज इन केमरनाइट्स के ग्रुप में. देयर लॉट्स ऑफ केमरनाइट्स, सब बहुत अलग अलग बैचेस के. सो समबडी रोट व्हिच वाज न्यूज़ फॉर मी क्योंकि आपने हमें नहीं पढ़ाया था. समबडी रोट दैट आपने संस्कृत भी पढ़ाया. संस्कृत मैंने नहीं पढ़ाई. तो फिर बंदे को गलत याद है. गलत आपने क्या ऐसे पढ़ा दिया होगा गच्छामी नहीं बेटा पढ़ा दिया होगा. मैं बड़ी हमारे जमाने में 15 नंबर का संस्कृत का पेपर होता था. हमारे टाइम में 5. नहीं जब मैंने 10th का इम्तिहान दिया था तो 15 नंबर में मुझको 0 मिला था. So to that person who was saying मैम ने आपको संस्कृत पढ़ाया, बिल्कुल मैम ने नहीं पढ़ाया. फ्रेश फल खिलाइए और दूध पिलाइए कच्चे गाय का. कहना मैम को संस्कृत नहीं आती, संस्कृत नहीं पढ़ाई मैंने. Okay. और मैं मेहरा और मैं हिंदी पढ़ाते थे. मैं मेहरा थी, मैं हिंदी पढ़ाती थी. और मेरी हिंदी थी तो बहुत अच्छी थी
क्योंकि हम कुमाऊं नहीं ठहरे, हमारी तो हिंदी अच्छी होनी है। Diction बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल होता तो आपने हमारा। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए मैम, एंड संस्कृत नहीं पढ़ाया, हिंदी को पढ़ाया 2, 3, 4, 5? मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया। हाँ, मैंने हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई, मैंने Wow. हिस्ट्री पढ़ाई, वाओ मैंने होम साइंस पढ़ाई, सोइंग पढ़ाई, निटिंग पढ़ाई, सब। मैम। लेकिन उतनी छोटी क्लास में होता था तब केमन हॉल पहले में? नहीं, कैमरन हॉल में नहीं, अच्छा, इन पहले द प्रीवियस स्कूल। जो पहले प्रीवियस से स्कूल पढ़ाया में मैंने। थे। Okay. वहाँ तो फिर जो आप टीचर आ गई ना, हाँ, so you have to teach everything. everything. Oh, You should okay. know और- everything. So But ma'am, so this is 1970. So when you joined the junior school, तो उस समय मैम जगवाला was the headmistress? no. जगवाला the- तो बाद में आई, मिस्टर टक के समय में आई। Okay. So who was the headmaster or mistress? मिस एडवर्ड्स थी, एथल Oh. एडवर्ड्स। अच्छा 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 Old अच्छा lady. अच्छा अच्छा। Edward. एडवर्ड जो राजपुर रोड में एथल एडवर्ड्स थी, मिस एथल एडवर्ड्स थी। Okay. वो थी वहाँ की हेडमिस्ट्रेस, Okay. बहुत ही लायक। और वो लालबाग में हम्म। इजाबेला थोबन कॉलेज का जो सिस्टर स्कूल था, हम्म। वहाँ वो टीचर थी। Okay. शी Okay. वाज वेरी गुड। So मैम जगवाला did by any chance, क्योंकि आपकी junior थी, you said in the IT college in Lucknow. So by any chance did you introduce her to Cayman Hall? नो शी हरसेल्फ केम टू। कौन उसको करता? हाँ सही बात, उसको वो तो वो तो वहाँ आई, और जब उसने देखा कि जब उसने देखा कि मैं भी वहाँ हूँ, हाँ. तो शी नेवर लाइक्ड मिस मेहरा। मिस मेहरा को अच्छा नहीं मानती थी। हाँ। अगर उसके ऑफिस के बाद से मैं मिस मेहरा के क्लास से पास हो गई और मैंने उसकी तरफ देख भी लिया तो बस। पर मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बात कर क्या और क्या कहते हैं, जरा घबराती भी थी मुझसे। मैम लेकिन आप बोल रहे हो कि बाद में, लेकिन both of them, मतलब we used, they were terror for us. मैम जगवाला और मैम मेहरा। No, seriously, मैम they मेरा were तो- terror. Seriously. मैं भी थी टेरर। नहीं, I worked you were very disciplined, but I हाँ। think very kind. हाँ, मैं तो बहुत डिसिप्लिन, मेरे घर में भी बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन में नहीं, रहे। लेकिन आपसे I don't, मतलब, and I'm saying on behalf of lots of Cameronites, but I don't think आपने कभी किसी को मारा होगा. Yes, you were very strict, definitely, all of but you us were very were. nice All and of us kind. were at हाँ। some Very stage. nice and kind. मेरे बच्चे। हाँ, तो स्ट्रिक्ट वाली तो एक कहानी अभी बताऊंगा मैं आगे जाकर अपने भाई की। तो उसके मैम मुंह में जगवाला, मैंने टेप चिपकाया था oh my God. मेरे भाई भाई, के मुंह are you में। listening to this? Ma'am, remember? हाँ, एक बार मैम, अच्छा बता ही दो। Okay, so just to put context to everyone, हम बात कर रहे हैं, this would be, भाई was in class, my brother Shailesh Bajpai, whom I call भाई, was in class 5 or 6, 5, I was in class 4, and मैम ने, because I think he would be talking or doing something. All अब the आप time. बताइए, अब क्या हुआ था मैम? तब फिर मैंने उसके मुंह में टेप चिपकाया था तो रोने लगा था। मैंने कहा वहीं रहेगा तू, आज सारे दिन तेना बात नहीं करनी है। एक दफा मैंने एंड उसके थोड़ी देर बाद मेरी मम आ गई थी क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग थी, एंड देन यू शोड मैंने सी बोथ योर उस किड्स। जमाने में तो टेप लगाया दिखाया बच्चा ने टेप निकाला। वो तो मुझे याद नहीं, निकाल दिया था फिर मैंने तो टू रोने बी लगा। फेयर, हाँ। टेप नहीं लगाया था, बैंडेज लगाई थी Bandage फर्स्ट एड बॉक्स से, हाँ। व्हाइट कलर की, पूरी यूं करके ऐसे लपेट के। हाँ और फिर आपने मेरे को भी बताया था हाँ, मैंने कि कहा तेरा इतना भाई बहुत नॉटी है। नहीं, बोलता बहुत था, पढ़ाने नहीं देगा, ना बच्चों को काम करने देगा, ना कुछ। मैम लेकिन वो तो बोलता ही नहीं है। कहाँ पर है वो? मैम वो मेरे साथ वो ही तो है, बोलते यू ही इंग्लैंड नहीं रहता है, मैम, पर ये हो है सकता यहाँ कोई- बोलने वाला। कोई और बोल रहा और वो फंस गया हो, ऐसा हो सकता है। वो देखो वेरी क्वाइट एंड शाय। आंटी कहाँ है वो अभी? इंग्लैंड तो नहीं है। बोलता नहीं है बिल्कुल, इंग्लैंड में ही है। मेरी याद दिला देना। हाँ जरूर। आज वो मैंने कल देखिए। उससे रात को बात करी, एंड मैंने उसे ऐसी मस्ती में पूछा, मैंने कहा भाई मैं वो बात बता दूं? बोला हाँ हाँ मैम को पूछा। बोला पूछना, लेकिन बैंडेज क्यों बांधी थी? तू बता, कहना तो कितना बोलता था। आज मैंने कहा आज मैं तेरी मुंह पट्टी ही बांटूंगी, तू भी ठहर जा, तू भी याद रखेगा। तेरी मम्मी भी आई थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल के उसके बाद वो भी शर्मा गई। हाँ नाइस एक- भूली एक दफा ना, माँ। एक दफा ये भाटिया ब्रदर्स जिनका ये है, प्रेम भाटिया और ये गुलशन, भाटिया हाँ जिनका हाँ, ये ओके ओके, कृष्णा पैलेस। कृष्णा पैलेस था, तो उनकी माँ आ गई। मैं क्लास 6 में पढ़ा रही थी तब भाटिया को। मैं क्लास 6 की टीचर थी, मैं पढ़ा रही थी उसमें। आके वो बैठ गई पलाथी मार के, जैसे ठेठ पंजाबी हो तो, हाथ में डंडा लेकर के आ गई। हाँ उसकी क्या है? पिटाई करने बेटे की। आज ऐसा करो हाँ मैडम, इसको आप मेरे सामने खूब मारो, प्रेम भाटिया को इसको मारो, ये बहुत मुझे तंग करते हैं। ऐसे पेरेंट्स से उस जमाने हाँ, में। बिल्कुल सही। हाँ,
मारो इसको, खूब मारो। Because parents also had a lot of regard for the teachers. हाँ. ना? They knew that you would shape us right. हाँ. You know. मैंने कहा मार से तो कहने लगे घर से पैसा चुरा के भागते हैं, ऐसे पेरेंट्स आते थे हमारे पास, आप इसको मारे इस डंडे से। हाँ. और मेरा क्लास सन बिल्कुल। आंटी वो प्रेम का जो दूसरा भाई था ना, उसका नाम क्या था? वो जो मोटा था, प्रेम तो पतला सा था। प्रेम भाटिया तो पतला था, मोटा उसका वाले का भाई बड़ा था, उसके चाचा के ताऊ का लड़का था। उसके भी फादर एक बार मेरे घर आए थे, कहते कि आप इसको यहीं पे रख लीजिए, मैं तो परेशान आ चुका इससे। हाँ बेटा। अब और मेरे को किसी ने बताया, मैं नाम नहीं, मेरे को मना करा था नाम बताने के लिए, तो किसी ने मेरे को बोला कि आपने किसी कैमरोनाइट को बोला, प्यार से बोला होगा, गुस्से में नहीं, प्यार से बोला होगा, देख पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को भी पढ़ाया, तेरे बाप को भी पढ़ाया मैंने। हाँ कहा मैंने, हाँ कहा होगा मैंने। हाँ तो वो आकर पूछता था अपने पिताजी से कि मैम ने मेरे को ऐसे क्यों बोला। बोले बेटा कोई बात नहीं, टीचर है, मेरे को ही पढ़ाया था उन्होंने। हाँ इसमें नाम क्यों नहीं बताना, ये तो अच्छी बात है। हाँ मैंने कहा तेरे बाप को भी पढ़ा रखा मैंने, तमीज से रहो। तमीज से। हाँ, हाँ, हम तो ऐसे प्यार से बात करते थे बच्चों से, घरेलू तरीके से ना। हाँ, हाँ, ऐसी नहीं तो आई वुड लाइक टू से समथिंग कि ये जो बात करने का तरीका होता था ना, ये अपनापन होता था। हाँ अब तो आप ड्रामा करो, बेबी स्वीटी डार्लिंग, और कुछ मत करो। हमको नहीं आता ऐसा। मैम अभी आप केके सर के बारे में बता रहे थे क्या? केके सर को आपने पढ़ाया? उसके बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में दोनों। नहीं, जैसे आप बोल रहे कि ब्लैक बोर्ड में छोटा लिखते थे, मैंने कहा तो मुझसे नहीं, जो बच्चा पीछे बैठा वो लिखेगा क्या, सब फेल होंगे। मैंने कहा केके की हैंडराइटिंग हाँ है तो ना। आपने डांट दिया उन्हें? हाँ सबको डांटती। कैसर को क्या कहा था आपने? मिसिर मतलब को साड़ी के लिए, वो बताओ कहानी। इसको नहीं बताऊँ। नहीं क्यों नहीं बताऊंगी, मैं बता रही थी। बताओ ना, तुम बताओ। तभी मैम इन्हें मैंने एम्पायर की तरह बीच में बिठाया कि अगर साड़ी वाली बताओ ना, इतनी अच्छे से बता दो। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? वो तो सुनेगी भी नहीं। चलो आप बताओ। ना वो तो सुनेगा, मेरा बच्चा है, उसके सामने नहीं सुनाऊंगी। तो गंदी बात थोड़ी है कोई, गंदी थी तो मुझे क्या मैम ने बोला कि हाउ टू ड्रेस वेल? नहीं, वो साड़ी नहीं पहनती थी, है ना। अच्छा सो शी सेड प्लीज वेयर साड़ी। इन्होंने कहा कि साड़ी ना तू अपने को समझती क्या, तू साड़ी नहीं पहन सकती है, तो ये साड़ी नीचे लटक रही बेचारी की लंबी सी, वो साड़ी बड़ी स्टाइल में पहनती थी, नीचे झूलती रहती थी। इतनी ही साड़ी उतारूँ अभी, सही करो तुझे मैं। वो इतनी सीनियर टीचर बिल्कुल चुप। बट मैम का रिस्पेक्ट करते थे ना। तभी तो ये किसी को भी डांटी। तुम मिस्टर सकलानी को डांट देती थी, और तो छोड़ो। चांद सकलानी को नहीं। एक दफा कैसर मेरे घर में आ गई। हाँ मैम, मतलूब की बात हो रही है। मतलब ही है ना उनका नाम मैम? हाँ ठीक है, बोलिए। नहीं कैसर नहीं, हम मैं मतलब तो उनकी शादी थी। हाँ। और कैसर अहमद थी। अच्छा मिसेस अहमद। हाँ मिस अहमद, वो उनकी बड़ी बहन थी। वो सुबह 6 बजे आ गई मेरे घर में। उस समय मेरे बच्चे छोटे, मेरे उस समय तक अपने जाड़ों के दिन थे, दिसंबर का, मेरे कपड़े धुल गए थे। कपड़े धुल के मैंने बाहर भी डाली, तो कब धोती होंगी मैं? 6 बजे नहीं, करीबन 9 बजे के करीब आ, मेरे कपड़े धुले हुए थे, बच्चों ने नाश्ता पानी कर लिया था। आ गई, हाय मैम आपने कपड़े सब धो दिए। मैंने कहा तो क्या सोची तू? तो ठीक थे, सुबह तो धुलते हैं। हाँ मैंने कहा बस, और नाश्ता कर लिया? मैंने कहा मेरे बच्चों ने, मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा बैठ जा। फिर मैंने जल्दी इसके लिए पराठे बनाए, अंडा बनाया, और फिर और कुछ और भी था, मैंने उसको दिया। मैंने कहा ले पेट भर के खा तू। बहुत अच्छे पेट भर के खा लिया। फिर तो मेरी सास कहने की कौन मेरी मदर इन लो जरा स्ट्रिक्ट थी कि बेबखत कैसे आ गई फिर सुबह मैं तो भाई 6 o'clock in the morning। मतलब 6 नहीं 6:30 7 बज रहे होंगे। अच्छा स्कूल से पहले? नहीं बेटा, छुट्टियाँ पड़ गई थी। ओके छुट्टियाँ पड़ गई थी। तब मेरी सास कहने लगी, क्या कहते हैं, हाय पहाड़ी में कहने कि हो जो तो घर में एक जगह नाची नहीं, जगह नहीं है इसके घर में, जो सुबह यहाँ आ गई, ये भी नहीं देखते ही लोग। मैंने कहा मामा चुप रहो, मैं बनाऊंगी। मैम आप खाने की बात कर रहे हैं, मुझे और कुछ बच्चों ने बताया। खाना है तूने? नहीं अभी नहीं। मैंने मुझे कुछ बच्चों ने बताया, स्पेशली बोर्डर्स ने बताया कि आप उन्हें बहुत प्यार करते थे, बोर्डर्स को, स्पेशली बोर्डर्स को। उनके बारे में बताइए कुछ। बोर्डर्स पर मुझे तरस आता था। एक तो माँ बाप से दूर रहते थे बेचारे। ठीक। ये नहीं कि बोर्डिंग में उनके संग बुरा सलूक होता था, पर मैं उनको मैं पढ़ने में भी देखती थी कि ठीक से पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। एक दफा बोर्डर्स ने बड़ी शरारत करी। स्कूल के ताले तोड़े और टीचर्स के रजिस्टर फाड़े।
अच्छा, ये कौन से साल की बात होगी मैम लगभग अंदाजन? मिस्टर तब हमारे ये थे अपने पुराने, ये मिस्टर सिंगल? सिंगल थे। अच्छा। मिस्टर सिंगल चम्मच भी तोड़ी थी। चम्मच? बहुत तो कुछ कर, आई थिंक आफ्टर आवर टाइम आई हाँ तुम्हारे बाद बहुत साल के बाद तब मिस्टर सिंगल थे। हम्म। बस क्या कहते हैं, मेरा जब मेरे क्लासरूम में आए उन्होंने मेरा कवर तोड़ा तो एक चीज नहीं छुई, सब जैसे कि तैसे, रजिस्टर वैसे, टीचरों की डायरी फाड़, रजिस्टर फाड़, ये फाड़ वो फाड़, मेरा कुछ नहीं फाड़ा। तब मिस्टर सिंगल कहने लगे, मिसेस गिनवल क्या और स्कूलों में भी ऐसे ही होता होगा? मैंने कहा आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर स्कूल्स बट आई एम बॉदर्ड अबाउट माई स्कूल, व्हाई शुड हैव बीन हियर। ठीक कहा मैंने, मुझे क्या पता दूसरे स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मिस्टर जी हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ती थी तब भी एक बैच ने काफ़ी हंगामा काटा था। हाँ। ये तोड़फोड़ नहीं करी थी लेकिन खाना छोड़ा था और खाना उठा करके डस्टबिन में फेंका था। तो बोर्डर्स जब घर से बाहर, घर में ना वो राजा की तरह रहते हैं, हाँ स्कूल तो स्कूल है, वहाँ तो एक डिसिप्लिन हाँ। है ना। तो वहाँ पर जब इस तरह का होता है तो कई बार कुछ लोगों के कहने पे सब रिटेलिएट करते हैं। हाँ वही तो। But coming back to the same point that I was saying कि you had a lot of love for the borders. मैं कहती थी और बच्चे, कुछ के नाम याद है आपको जिन स्पेशली जिन्हें आप बहुत प्यार, आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं बट स्पेशली कोई? सिरोही था एक, कोई अच्छा, सिरोही अभी है। जैसे कोई अभी कोई मिलने आता है आपसे? हाँ। कोई आते, मैं नाम भूल गई हूँ। अच्छा, शिवांगी तो अभी आई थी? शिवांगी आई थी, हाँ। एक लड़का वहाँ से भी आया था, वो मोहम्मद लड़का था, पता नहीं Okay. उसका नाम क्या था, मैं भूल गई, ओके नाम मैं भूल जाती हूँ। और अमन कपूर आता मुझसे मिलने, अमन Okay. कपूर, ओके उसका बेबी भी लेकर के आया अपना बच्चा लेकर शिवम के। कपूर? शिवम नहीं, अमन अमन कपूर, कपूर, छोटा Okay. बहुत बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का था। और कोई बहुत सी लोग हैं, शिवांगी है। और मैम आप ना एक ना बचपन में मुझे याद है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप ना जब कोई इफ एनी स्टूडेंट वाज वेरी नॉटी राइट और you would like to scold the person, तो you would always say तुम बहुत शरीर हो। तो मैं मतलब एज अ किड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो शरीर क्या होता है, तो वो आप बड़ा पेक्यूलर वर्ड सिर्फ आप ही के साथ अटैच था, तो शरीर शरीर का मतलब बताइए। नटखट, बहुत नटखट हो, टू मच नॉटी। शरीर इज अ वेरी स्वीट वर्ड फॉर Okay. शरारत। ओके। मिसेस पित्रे की याद है तुम्हें? चंद्रशेखर पित्रे था उनका लड़का, मिसेस पित्रे। नहीं, आई थिंक नॉट इन माय टाइम्स। अच्छा। पुराना है। अच्छा, मिसेस गुहा की याद है तुम्हें? वो भी हमारे टाइम पे नहीं थी। अच्छा। वो अभी चली गई। हाँ, आपके टाइम पे 84 में चली गई थी। मुझे पढ़ाया। हाँ। मिसेस गुहा ने पढ़ाया, बहुत अच्छी टीचर थी। और वो राम उनका लड़का था, उसका आर्टिकल आया है, तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। असल में उनके हस्बैंड भी मुझे बहुत अच्छा मानते थे, बहुत अच्छा। हम लोग जाते थे FRI में। शी वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। मैम एक और चीज़ जो मुझे याद है बचपन की, तो यू वर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब हमारा एनुअल डे होता था ना, हाँ, तो आप हमेशा प्ले करवाते थे। हाँ, यू नो आई वाज आल्सो इन पार्ट ऑफ वन ऑफ द प्लेस दैट आपने कराया था, उसका नाम था हम सब एक हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, हाँ। तो दूल्हे तो दो ट्विंस, मतलब दूल्हा था, उसका भाई था, ट्विंस थे। हाँ, मल्होत्रा। मल्होत्रा बिल्कुल याद है मैम को, मेरे जूनियर हैं वो। मेहरोत्रा हैं दो, और लड़की थी वो दुल्हन बनी थी, वो उनसे बड़ी थी जबकि, लेकिन शी वाज वेरी क्यूट। तो और उस प्ले में आपने, मतलब मैं भी था उस प्ले में, तो वो आप प्ले हमेशा करवाते थे, मतलब एनुअल डे में। हाँ, मैं करवाती थी। हिंदी वाला ना? हाँ, हम सब एक है, मैंने करवाया था। करेक्ट। बहुत खूबसूरत प्ले हुआ था वो। सबने कहा था इसको तो, इट वाज लाइक एन एंसेम्बल, मतलब बहुत सारे सबके मैं कपड़े सिलती थी। सब करती थी, दिन भर स्कूल में रहती थी मैं। मेरी सास कहती थी तू स्कूल ही में डेरा डला। इतना हम दिल और जान से काम करते थे। आई रिमेम्बर दोस टाइम, एंड एज किड्स हम लोग बहुत तब मिस्टर ड्यूटी थे। नहीं, ये मिस्टर आरसी सिंगल। हमारे टाइम तो पूरे टाइम मिस्टर आरसी सिंगल ही रहे। सिंगल किस वक्त? मिस्टर मेयर आई थिंक गए थे। नहीं, मिस्टर सिंगल के टाइम पर था। अच्छा करा मैम आपने, यू टॉक्ड अबाउट मिस्टर मेयर। सो आपका टेन्योर रहा 70 से 2009, करेक्ट? 2007 तक। 2007 नहीं, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मिस्टर नहीं चाह रहे थे मिस्टर सिंगल मुझे छोड़ना। अच्छा। मैंने कहा मैं अब बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, अब छोड़ दीजिए। मुझे कहते यू आर ए यंग ओल्ड टीचर लेडी। मिस्टर सिंगल ने मेरा नाम यंग ओल्ड लेडी रखा। यू आर स्टिल वेरी यंग।
एंड यू कैन गिव रन ऑफ मनी टू लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी कोई मेमोरी नहीं है, कुछ हाँ, याद नहीं है। हाँ। आपको तो यू रिमेम्बर लास्ट 55-60 इयर्स का याद है आपको, मैम। नाम याद रखना बहुत हाँ। बड़ी बात है। हाँ तो क्या So, कहते हैं? so in this tenure, ma'am, so which is lasting for roughly 40 years in हाँ. Cayman Hall. So you had almost like 4 principals. So Yeah. Dutra sir हो गए, Mr. Dutra Mayor हो गए, Mr. Mr. Tuck Tuck. हो गए, Mr. Mayor हो गए, और and Mr. R.C. Singhal. सिंगल वेयर। So tell us bit about these 4 personalities. थोड़ा उनके बारे में। मिस्टर सिंगल वॉज अ वेरी होमली पर्सन, बहुत अच्छे थे। He was a nice man बहुत। but a bad boss. वो डिसिप्लिन के मामले में Couldn't have been put nicely. आपने पढ़े? बहुत अच्छे थे, अच्छा। सब कुछ अच्छा था। उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया है। Okay. किसी का कुछ नहीं कहते थे, जितनी चाहो छुट्टी ले लो। हाँ खुश होते थे छुट्टी लेते, तनख्वाह कटेगी। मतलब वो Everything that you don't want to he say, was she'll a say. money minded principal। Now she'll हाँ बस शायद मुझे बुरा नहीं लगता था। हाँ. चलो ठीक है, हम खुश थे। As long as they will. What about or principals? मिस्टर मेयर अच्छे थे। अच्छा, बहुत छोटे टाइम पे थे। बहुत छोटा टाइम तो बहुत, पता ही नहीं। but He was उनके- more of a ट्रांजिशन या एड हॉक? ना, वो जो मुझे याद ही नहीं है उनकी। वो एजुकेशनिस्ट था। हाँ, वो ही ना वॉज एन एजुकेशनिस्ट। और वो उनकी वाइफ जो थी, एक अच्छा Administrator नहीं हाँ, था। ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ाई में गजब। बट ही वॉज वेरी मतलब एजुकेटेड एंड वेरी। एंड देन मिस्टर टक उनसे पहले? मिस्टर टक तो बहुत ही अच्छे थे। मिस्टर टक तो टकी थे भी। वो उनके राज्य में तो कैमरन हॉल ने दून बहुत स्कूल तरक्की। की बराबरी करी थी। बिल्कुल सही। बहुत ही यंग थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ। रिस्पेक्ट करते थे, करते- रिस्पेक्ट लेते थे। हाँ, रिस्पेक्ट लेते थे सब। That I've heard from students as well from that era. मिस्टर टक को सब बहुत प्यार करते थे। पर उनकी And then Mr. Dutra. ड्यूटी तो लाइक अ पापा टू अस। Oh. एवरीबॉडी हाँ। और उनकी वाइफ तो उस समय हम बीच में से आते जाते थे, कोई बाहर का रास्ता नहीं था। कम डियरी, हैव अ कप ऑफ टी, इट्स वेरी कोल्ड। कम, वहाँ बैठ जाते थे। इट वाज लाइक अ होम टू अस। बिल्कुल कैमरन हॉल मेरी जिंदगी में कैमरन हॉल इज माय सेकंड होम आफ्टर माय फैमिली। Cameron Hall. Still, I love Cameron Of Hall. course, you gave 40 years of your And life people to. loved me, and I am one of the most richest women in this world because I got lots of love from Cameronites and from all the teachers and all the bosses. मैम, जब ये बात हम बोल रहे हैं ना, आपके एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज है। डॉक्टर समीर स्वामी, हाँ. उन्होंने बोला है आपको कि ही इज गिवन लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड टू यू एंड ही ओव अ लॉट टू यू, और साथ में उन्होंने बोला है कि बहुत दिन से आप चेकअप के लिए आए नहीं, क्यों नहीं आए हो, आपने मिस करा अपना रेगुलर चेकअप। हाँ, रेगुलर चेकअप इसलिए मिस करा बेटा आना है क्योंकि मैं आपको। आ नहीं सकती। ओके। अपने आप में नहीं जा सकती, और मेरी लड़की ले जाती थी मुझे। मेरे पास टाइम नहीं था। मैं आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक टू हिम। ओके, हाँ, तो वो बहुत याद उसके करते लिए हैं। मैंने एक छोटा सा कुछ रखा था। वो कभी मेरे से फीस नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। अब मैं उसके पास कैसे जाऊं? डॉक्टर समीर स्वामी, आप तो जानते हैं, हाँ, 1982। डॉक्टर समीर बहुत ही पर्सन। बहुत ही बढ़िया। वो यहाँ पर तो मैं जाती थी उसके पास, नहीं गई हूँ 2-3 साल से। मेरी तबीयत भी, सिर बहुत घूमता, अब क्या करूँ? कौन ले जाएगा मुझे? किसी के पास टाइम नहीं है। When you were talking about मैम जगवाला, एक और टीचर हैं जो आप ही के कॉलेज से आए हैं, मैम जोसेफ। हाँ, मैम जोसेफ इंदिरा है तो अभी वहाँ तो है। आप पढ़ाती थी, लेकिन आप तीनों सेम कॉलेज से आए हैं, करेक्ट? मैं तो कौन से आईटी कॉलेज? कॉलेज ना लखनऊ। ना, इंदिरा जोसेफ इज नॉट फ्रॉम आईटी कॉलेज। मैम said- इंदिरा नहीं, कोई नहीं। अरे, आईटी कॉलेज से सिर्फ मैं ही थी एंड जगबाला। एंड जगबाला। लेकिन वो बोली वो भी थी, आप तीनों थे? नहीं, मिसेस जोसेफ का तो जब आंटी हो सकता है कि पड़ेगा। आपके बाद। हाँ। मेरे बाद आई होगी, बट नॉट, शी वाज नॉट माय कोलीग। और मेरे नहीं, कलीग नहीं, वो भी वहां से पढ़ी। हाँ पढ़ी होगी। हाँ, बाद पढ़ी। में पढ़ी हाँ, होगी। आपके साथ तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि मेरे एज बाद डिफरेंस है। मेरे तो बहुत साल बाद आए। हमारे समय में तो इजाबेला थोबन कॉलेज तो एक चीज थी। मैम, थोड़ा सा आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताइए। कौन सी फैमिली? पेरेंटल साइड। हाँ, पेरेंटल बच्चों के बारे में, अबाउट मेरे योर तो हस्बैंड। बहुत लंबी फैमिली है। इन-लॉज पूछो। हाँ। इन-लॉज की तो बहुत लंबी फैमिली है। हाँ। और मेरी जो पेरेंटल साइड है वो ऐसी है कि क्या कहते हैं, मेरी माँ तो वो तो भी क्रिश्चियन बनी बाद में, और फ्रॉम चंदोला ब्राह्मण से ओके, भूनानी के संग बनी। ओके। और बस शी इज़ द ओनली क्रिश्चियन।
और इस साइड में जो है अभी भी मेरे सारे नॉन क्रिश्चियन अभी वहाँ से पुनेरी से आते हैं मेरे लिए ओके, मिलने के लिए आते हैं, वहाँ अच्छा। से सामान लाते हैं मेरे लिए, हाँ वहाँ के भट्ट लाते हैं, हाँ गहत लाते हैं, हाँ, और क्या कहते हैं अब पुराने लोग तो खूब, बहुत अच्छा हाँ हम्म, पुराने लोग तो अब चले गए, अब नई नई जनरेशन है। मैम एक जो सब पूछना चाहते हैं, आप वैसे तो मुझे दिख ही रहा है, आप बिल्कुल हेल्थ वाइज एकदम अच्छे हैं, टचवुड बहुत अच्छा दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप अभी आपका रूटीन आजकल क्या रहता है? मेरा रूटीन क्या हाँ, रहता है, सुबह कितने बजे? मैं आजकल ठंडा है तो हाँ। मैं ज़्यादा देर से उठती हूँ, मेरा हाँ। बेटा मुझे चाय बना के देता है, हाँ गरम गरम चाय पीती हूँ, फिर हाँ। उठती हूँ, अपना बिस्तर बनाती हूँ, हाँ फिर क्या कहते हैं अपना फ्रेश अप हो जा करके हो करके मैं अपना थोड़ा प्रार्थना करती हूँ। आई रीड माई बाइबल। मैम आपने प्रार्थना बोला, सो व्हेन आई वाज हम जब बच्चे थे तो वन ऑफ द थिंग्स जो मैम ने हमें सबको सिखाई थी, व्हेन यू गेट अप द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज नहीं ठीक है, is that you should thank the God because you have been brought in this world, and also second thing you said, because you're touching this earth you should also thank the earth हाँ that you have been brought up in this world. हाँ So बिल्कुल, these two things you said, say thank you, हाँ, gratitude, these बिल्कुल। were things that you taught us हमेशा as a परमेश्वर child, को धन्यवाद देना चाहिए, even before asking. आपने ये बोला था before you ask anything, वो देता है। say give thank you, हाँ। say thank you to एक साम है लिखा हुआ, हिंदी में बताऊंगी मैं तुमको। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत भूलना। हम परमेश्वर के उपकारों को, आज मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि उसने मुझे अपने इतने प्यार करने वाले लोगों से मिलाया, एंड वी आर टेकिंग, हम जिंदा हैं इस उम्र तक कि हम सबको देख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और मैं तो पता नहीं ईश्वर ने मुझे कितनी बरकत दी है, इतना बड़ा घर दिया है, प्यारे बच्चे दिए हैं, प्यार करने वाले लोग दिए हैं, मुझे कुछ करने के लिए दिया है किसी को, कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, किसी के लिए सिलाई कर सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नीटिंग एंड सोइंग करी है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे एक चाचा जी थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो बहुत दिल के अच्छे थे। उन्होंने मुझे एक सोइंग मशीन दी थी उषा की, वो उस समय 245 रुपये की आई थी। ले तेरे लिए मैं ये सिलाई की मशीन लाया हूँ, सिल। उसमें मैंने दुनिया भर के कपड़े सिले। आज वो मशीन भी 60 साल पुरानी है। जितनों के बच्चे हुए सबके लिए मशीनें सिली, अपने स्कूल के टीचर्स के लिए, के बच्चों के लिए सिली, अपने उनके भाई बहनों के लिए, अपने नौकरों के कपड़े सिले, पेटीकोट सिले, पैजामे सिले। रात में मैं सिलाई करती थी, ऊपर बल्ब जलता था, दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी। यहाँ बैठ के पड़ोसी में बच्चों के जिनके पैजामे फट जाते थे उनके पीछे से टल्ली काटती थी, वे टल्ली लगाती थी, टल्ली वाली पैंटें बना के बाहर बैठ करके उनको देती थी, लो पहनो। तो खुदा ने मुझे, और नीटिंग पुराने उधेड़ उधेड़ करके मैं दो बनाती थी। ये नहीं कि किसी को पुराना उधेड़ के बनाती थी बेटा। तो खुदा ने मुझे, पता नहीं, तभी तो मैंने कहा इतने साल कैसे कट गए जिंदगी के, पता ही नहीं चला हमको। मैम ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर डीड्स, आपने इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे बच्चों को, इतना अच्छा, इतना कुछ करा, मैनकाइंड के लिए भी इतना कुछ करा। मैंने तो कुछ नहीं किया, खुदा ने जो मेरे लिए किया कुछ नहीं किया। आई हैवंट डन एनीथिंग टू एनीवन। और ये फीलिंग होना कि मैंने कुछ नहीं करा, करने के बाद भी बस इसी में भगवान खुश होता है। और मैं तो सबसे ज़्यादा, हम रोज कहते हैं ये दे दे, सबसे ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलते। खुश होती हूँ मैं, कहती हूँ खुदा एक ऐसा चैटर बॉक्स और दे दे मुझे। हम भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। मैंने इसको इतना डांटा, चुप हो जा, तू कितना बोल दी, किसी को नहीं बोलने देती, चुप हो जा। अच्छा मैम, ये कई लोग मेरे लिए बोलते हैं, तो एवरीबडी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड हु हैव कंप्लेन कि सचिन बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा चपड़ करता है। तो जब मैं बहुत छोटा था, सो हिंदी एलोक्यूशन में somebody who pushed me and if somebody should be made responsible is this lady। ये मेरी शिक्षिका है, इन्होंने सबसे पहले मेरे को एलोक्यूशन में सेलेक्ट करा था और इन्होंने बोला था कर सकता है, बिकॉज आई वाज वेरी एज अ किड, मैंने कहा क्यों नहीं करेगा। तो मैम ने बोला कि नहीं तू करेगा, मुझे ही सेलेक्ट करा था। इनफैक्ट वो एक we used to have that group elocution, तो उसमें भी एक बच्चे को मैम बोलती थी ऐसे खड़े हो, बाहर निकल के, मतलब in the middle of the elocution, one would step हाँ, so I and of course there were a few others as well, so ma'am would say
सचिन ओके तुम तो मैं बार बार सोचता हूँ मुझे क्यों बोल रही है, लेकिन ऑफ कोर्स मैम आप ही ने वो कितने नींव अच्छे रखी। एजुकेशन होते थे ना। Only those children were made to step out who were good at it. हाँ। मैम गुड एटीट्यूड तो हमें तो नहीं पता मैं था, तो डर तो लगती थी। हम समझते मैं हैं। तो सबको सिखा देती। हाँ, अच्छा मिसेस पित्रे मुझसे नाराज क्यों गई? वो चाहती थी हर समय उन्हीं का लड़का फर्स्ट है, कौन है? चंद्रशेखर पित्रे थी। मैं चंद्रशेखर को बहुत प्यार करती थी, बट व्हाई शुड वही क्यों आए हमेशा फर्स्ट? देयर आर अदर्स ऑल्सो। हाँ। उनको भी मैं चांस देखती, पर गुस्सा हो गई, मुझसे नहीं बोली। मैंने कहा देख अनु, एक बात बताओ, चंद्रशेखर को तो दुनिया में बहुत से चांसेस मिलेंगे, मैं सब बच्चों को चांस देती हूँ। सही बात। सब बच्चों में योग्यता होती है, कोई आउटस्पोकन होते हैं, कोई नहीं होते हैं, कोई शाय होते हैं, वेरी वेरी गुड। मैम आपको एक बता, मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, आई वी कैन गो ऑन एंड ऑन, दिस कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई एम कॉन्शियस कि मैं आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं बढ़ा सकता। आपने अपने स्कूल से टाइम निकाल रखा, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम दैट यू हैव टेकन अप योर कॉफी टाइम। बना के। हाँ अभी। और आपसे सिर्फ जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी चीज़, जो आप अपने जो जितने आपके इतने सारे स्टूडेंट्स आपने 40 साल केमन हॉल को दिए, इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया, सो एनी मैसेज जो सुन रहे हैं आपको, आप क्या बोलना चाहते हैं उन्हें? कुछ भी। ऐसा है, उनसे एक मैसेज देना है कि वो प्रेमचंद की कहानी मास्टर जी जरूर पढ़ें, और मैंने भी नहीं पढ़ी। पढ़ना, सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ लाएं, और प्रेमचंद की वो कहानी मास्टर जी जरूर पढ़ें। और आज मैं उन्हीं मास्टर जी में एक हूँ जिनको मेरे बच्चे प्यार करते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई एम वन ऑफ द रिचेस्ट वुमन इन दिस वर्ल्ड, Wow. बिकॉज आई गेट लव फ्रॉम माई चिल्ड्रेन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यू कुडंट हैव मैम, इससे अच्छा आप मतलब इतना खूबसूरत आपने बोला, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for all the love. Thank you very much for all the blessings. Thank you for तेरा प्यारा, importantly अभी भी the तू blessings. वैसा ही है। मेरे बच्चे तो तुम ही लोग हो सब।